My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions of time, speed and distance that have appeared in previous years in ZAT examination. This is the second session in that regard, and I will pin the link of first session at the top. So if you've not checked out the first session, then check out that first. Let us start the session, and if you've not already subscribed to the YouTube channel, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram or WhatsApp channel, Mathological, and can also message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of the session is from ZAT 2018. Pause the video, try to solve the question. बढ़िया सवाल है. So take your time, at least 4 to 5 minutes. दो सवाल को अगर अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है, take your time, try to solve it. And this question involves time, speed, distance as well as a bit of geometry. ठीक है. So a girl travels along a straight line from point A to B at a constant speed, v1 meters per second for t seconds. Next, she travels from point B to C along a straight line at a constant speed of v2 meters per second for another t seconds. यानी कि टाइम सेम है. ठीक है, पहले टाइम लग रहा है t सेकंड्स का, बाद में भी t सेकंड्स है. स्पीड डिफरेंट है v1 and v2 from A to B and B to C respectively. BC makes an angle 105 degrees with AB. If CA makes an angle 30 degree with BC, how much time will she take to travel back from point C to A at a constant speed of v2 meters per second if she travels along a straight line from C to A? Okay, so first let us draw AB. So this is AB and speed is v1 meter per second, time is t. So total distance AB will be v1 into t. Then BC makes an angle 105 degree with AB. So this will be BC. And speed is v2 meter per second, time t. So v2t will be distance BC. And then CA makes an angle 30 degree with BC. So this angle is 30. This angle is 105. Okay. So BAC angle क्या होगा? 105, 30, 135. So that angle will be 45 degree. Okay. Clear है? अच्छा, एक इसको थोड़ा बेटर ड्रॉ करते हैं, सो दैट AC को हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं. थोड़ा सा एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तुम्हें समझने में आसान होगा. ओके, दिस एंगल इज 105. A, B, C, AB is v1t, BC is v2t, and this angle is 105 degrees, and this angle is 30 degrees. So this angle will be 45 degrees. Okay, now let us draw perpendicular from point B on AC. So this angle will be, let us say this is T. So ATB, this angle will be 90 degree because perpendicular हमने ड्रॉप किया है. And if this angle is 90, this angle is 45. So this angle will be 45 degrees. Similarly, this is 90, this is 30. So this angle TBC, this will be 60 degrees. So दो हमारे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल आ गए. वन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल 45 45 90 वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा 60 30 90 वाला ट्रायंगल. एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज फॉर बोथ द ट्रायंगल्स. So one triangle is 45 45 90. So ratio of sides in this triangle will be 1:1:2, 1:1:√2. So two smaller sides will be 1 unit and √2 will be hypotenuse. ठीक है, तो रेशियो हमारा साइड्स का हो जाएगा 1:1:√2. एंड सेकेंड ट्रायंगल इज 30 60 90 वाला ट्रायंगल. This angle is 30, this is 90, and this is 60. So side across 30 degree, side opposite 30 degree angle, that side will be smallest side, and if that side is 1 unit, तो 60 के सामने वाला side, opposite side will be √3 units, and 90 degree के सामने वाला side will be 2 units. तो ratio of sides will be 1:√3:2. क्या ये क्लियर है? ओके, इज दैट पार्ट क्लियर? अब वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. सो दिस इज द डायग्राम. सबसे पहले 45 45 90 वाले केस में दिस इज v1t. बेसिकली रेशियो ऑफ साइड्स क्या होगा? AB is to BT is to AT.
because BT and AT are the smaller sides, 45 degree के सामने sides. If this is 1 unit, this will also be same. So both of these will be equal. यानी कि AT will be equal to BT. AT will be equal to BT. And AB will be root 2 times AT. Is that clear? ठीक है. So BT will be equal to, if AB is root 2 times AT, so AT will be equal to AB by root 2. And hence AT will be equal to V1T upon root 2. And so will be BT, V1T upon root 2. Now, in triangle BTC, 3690 वाला ट्रायंगल है, 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, V1T by root 2. So if this side is V1T by root 2, so 90 डिग्री के सामने साइड क्या होगा, that will be 2 times of this, 2 times of this. So this will be equal to 2 times of V1T by root 2. And this was already equal to V2T. तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे कि V2T is equal to root 2 times V1T. T से T कैंसिल आउट हो गया, तो V2 is equal to root 2 V1. V2 comes out to be equal to root 2 times V1. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. और क्वेश्चन हमें लास्ट में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन आस्किंग कि हाउ मच टाइम विल शी टेक टू ट्रैवल बैक फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए, यानी सी ए डिस्टेंस ट्रैवल करना है, स्पीड इज V2. सो डिस्टेंस अगर हम V2 टर्म्स में फाइंड आउट कर लें तो फिर चीजें इजी हो जाएंगी, बिकॉज V2 से डिवाइड कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा टाइम का. ओके, तो V2 इज इक्वल टू रूट 2 V1. ओके, क्या ये क्लियर है? V2 इज इक्वल टू रूट 2 V1, यानी कि V2 बाई रूट 2 इज V1. तो बस V1 की जगह पुट कर दो V2 बाई रूट 2. तो V2 बाय रूट 2 into T upon root 2. So this distance AT becomes equal to V2T by 2. V2T by 2. और BC is V2T. ठीक है. So this distance TC क्या होगा, 60 के सामने साइड है. So this will be root 3 by 2 of this distance V2T. तो V2T into root 3 by 2. So total AC comes out to be V2T by 2, कॉमन ले लो, inside the bracket will be 1 plus root 3. This is the distance, और क्योंकि स्पीड V2 है, स्पीड से डिवाइड कर दोगे डिस्टेंस को, टाइम आ जाएगा. तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू V2T into 1 plus root 3 divided by 2 divided by V2. So this becomes T into 1 plus root 3 by 2, 0.5 times root 3 plus 1 by into T. That is equal to option number C. This should be the answer. क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है. क्या समझ में आता है? So this was a good question involving two concepts, a concept of IMC distance and the concept of geometry. Next question. Every day a person walks at a constant speed V1 for 30 minutes. On a particular day, after walking for 10 minutes at V1, he rested for 5 minutes. He finished the remaining distance of his regular walk at a constant speed V2 in another 30 minutes. On that day, find the ratio of V2 and the average speed. And average speed is obviously total distance traveled by total time. Okay. And that includes, question की definition क्या रहा है, total time taken includes resting time as well. So in general, the person takes 30 minutes का time while he travels at the speed of V1. तो distance क्या आ जाएगा हमारा? Distance will be equal to 30 into V1. If V1 is in meter per second, मीटर पर मिनट मान लो, क्योंकि हमें ऐसा डिस्टेंस तो चाहिए नहीं है. ठीक है, तो मीटर पर मिनट मान लेते हैं. 30 V1 इज द डिस्टेंस. सिंपल रखते हैं मामले. सेकंड केस में क्या हो रहा है कि ही इज ट्रेवलिंग फर्स्ट 10 मिनट्स, फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स ही इज वॉकिंग एट स्पीड V1. सो इन 10 मिनट्स ही इज ट्रेवलिंग 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड V1. ठीक है, 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. नाउ रिमेनिंग डिस्टेंस इज, कितना डिस्टेंस रिमेनिंग बचा है? 20 मिनट्स का डिस्टेंस रिमेनिंग बचा है. सो डिस्टेंस रिमेनिंग दिस विल बी D1, लेट अस से दिस इज इक्वल टू 20 V1. And now he takes 5 minutes ka rest. So 5 minutes ka rest he is taking, and after that he finishes the remaining distance of his regular walk at a constant speed V2 in another 30 minutes. So this distance D1, this is equal to 20 V1, and since he is taking 30 minutes ka time with speed V2, so this is also equal to 30 V2. यानी कि V1 by V2 comes out to be 3 by 2. Okay. And total time taken क्या है? On that day total time taken is equal to 10 minutes initially plus 5 minutes का rest
plus 20 more minutes, total time is, sorry, 30 more minutes, 30 minutes लगे बाद में, 30 plus 15, 45 minutes is total travel time. Okay. So average speed अगर हम मान लें V average, VA मान लें, तो 45 times VA, this will be total distance. And this is equal to 30 V1. तो यहाँ से V average भी मिल जाएगा हमको, that will be 30 V1 by 45, which is 2 V1 by 3. तो V average is 2 V1 by 3 और V2 क्या है, V2 is equal to 2 V1 by 3. This is also equal to 2 V1 by 3. तो V2 और V average का रेशियो क्या आ जाएगा, V2 is to V average will be equal to 2 V1 by 3 is to 2 V1 by 3. दोनों सेम ही है तो फिर तो 1:1 है, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ता, बट यहाँ पे तो वो था इक्वल, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर सिंपली. क्लियर है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is Arup and Swaroop leave point A at 8 a.m. to point B. To reach B, they have to walk the first 2 kilometers, then travel 4 kilometers by boat and complete their final 20 kilometers by car. तो 3 phases हैं ट्रैक के. For first 2 kilometers they have to walk. They have to walk. And then for next 4 kilometers they will be using a boat. And then for next 20 kilometers they will be using a car. From point A to point B. Okay. Arup and Swaroop walk at a constant speed of 4 km per hour and 5 km per hour respectively. The speed of Arup is 4 km per hour, that of Swaroop is 5 km per hour. Each rows his boat for 30 minutes. यानी कि बोट से जो टाइम है वो तो सेम ही लग रहा है दोनों को, दैट टाइम इज 30 मिनट्स का टाइम. अरूप इज ड्राइविंग एट हिज कार एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 km per hour, while Swaroop is driving at a speed of 40 km per hour. So if no time is wasted in transit, when will they meet again? That is the question. Okay, so for the first phase, अरूप का स्पीड कितना है, दैट इज 4 km per hour. So अरूप का स्पीड इज 4 km per hour. डिस्टेंस हमारा है 2 kilometers. तो टाइम टेकन बाई अरूप कितना होगा in traveling this distance, 2 by 4. So time taken, this will be 2 by 4, which is 30 minutes. ठीक है, which is 30 minutes. 8 am पे स्टार्ट करते हैं. So if they start at 8 am, तो अरूप will be reaching this point at 8:30, and then 30 more minutes to travel by boat. So at 9 am, Arup will be reaching this point. Is that it? So, and स्वरूप का स्पीड है 5 km per hour वॉकिंग का. तो सिंस स्वरूप का स्पीड है 5 km per hour, तो स्वरूप विल बी फास्टर देन अरूप. तो स्वरूप पहले ही आगे निकल जाएगा और मीट करना है उनको. तो मीट करने के लिए जब अरूप उसको कैचअप कर पाएगा तभी तो मीटिंग होगा उनका. तो स्टार्ट से ही स्वरूप आगे है. देखो फर्स्ट फेज में तो आगे रहेगा वॉकिंग के टाइम पे, बिकॉज स्पीड ज्यादा है वॉकिंग में. ठीक है, तो वॉकिंग में डेफिनेटली स्वरूप आगे रहेगा, पूरे टाइम आगे रहेगा, क्योंकि एक बार लीड ले लिया तो फिर अरूप उसको कैचअप नहीं कर पाएगा बिकॉज स्पीड स्लोअर है. इसके बाद में ड्यूरिंग द बोटिंग टाइम बोथ आर टेकिंग द सेम टाइम. सो बोटिंग के टाइम पे भी अरूप कैचअप नहीं कर पाएगा. अरूप कब कैचअप करेगा, इसके बाद में जब कार से ट्रैवल करेगा, बिकॉज स्पीड ऑफ अरूप ड्राइविंग द कार इज 50 km per hour, while स्वरूप इज ड्राइविंग द कार एट 40 km per hour. तो अरूप फास्टर ट्रैवल कर रहा है वाया कार, सो ही विल बी कैचिंग अप ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस. ठीक है, तो वहां तक हम स्वरूप को ही पहुंचा देते हैं. इनिशियली टाइम लगेगा स्वरूप को, टाइम विल बी 2/5 बिकॉज स्पीड है 5 km per hour की. 2/5 which is equal to 24 minutes. So after 24 minutes, Swaroop will be reaching this point, which will be 8:24. 8:24. And then he will be taking 30 minutes. So at 8:54, he will reach this point. ठीक है, so Swaroop is reaching this point at 8:54, while Arup is reaching this point at 9 am. So there is a gap of 6 minutes. यही 6 minutes का टाइम है जिसमें कि Arup will be taking a lead. Sorry, Swaroop will be taking a lead because Swaroop पहले पहुंच रहा है. Swaroop will be taking a lead. और कितना लीड ले लेगा इन 6 minutes at 9 am. कहाँ होगा स्वरूप? Let us say this is the position at 9 am. So distance traveled by Swaroop in this 6 minutes duration will be total speed क्या है स्वरूप का 40 km per hour. तो 6 minutes is 1/10 hour. तो 1/10 hour into 40 km per hour. So distance travel will be 40/10, 4 km. So 4 km is the lead between them. At exactly 9 am, Arup is starting at this point. From this point, speed is 50.
स्वरूप इज एट दिस पॉइंट, स्पीड इज 40, तो दे बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 50 - 40। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक है, तो एक स्ट्रेच है जहां पे कि अरूप इज लेट अस से एट दिस पोजीशन एट द स्पीड ऑफ 50 ही इज गोइंग, एंड स्वरूप इज 4 किलोमीटर फार्दर गोइंग एट द स्पीड ऑफ 40। सो कितना टाइम बाद कैच करेंगे, बस यही तो निकालना है अल्टीमेटली में। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर, तो टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड विच विल 50 - 40, तो 4/10 2/5 आवर का टाइम लगेगा। सो दैट टाइम विल बी 9 पे 9 से हम 2/5 ऐड करेंगे, सो 9:24 AM विल बी द मीटिंग टाइम। अब इस क्वेश्चन में सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है, डायग्राम अच्छे से बना पाओ और पार्ट्स में क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अगर समझ गए तो आंसर क्लियर है, 9:24 AM विल बी द आंसर। क्या है क्लियर है? एक लास्ट पार्ट और जो चेक करना चाहिए हमेशा कि वैसे तो ऑप्शन से क्लियर है कि लास्ट पार्ट का टेंशन नहीं है, बट अदरवाइज एक बार ये भी चेक करना होता है कि कार हमारा डेस्टिनेशन में पहुंच तो नहीं गया है। ठीक है, जस्ट इन केस अगर डेस्टिनेशन में पहुंच गया तो डेस्टिनेशन में मिलेंगे फिर उससे पहले, इजंट इट सो? क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है लेट्स से 9:20 पे कार डेस्टिनेशन में पहुंच गया था, तो डेस्टिनेशन उससे पहले ही कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद तो फिर आगे ट्रैवल करने की गुंजाइश ही नहीं बची ना। ठीक है, तो एक वो लास्ट चीज जरूर चेक कर लेना, कभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आए तो ये जरूर टेस्ट कर लेना, अगर ऑप्शंस को देख के, अगर ऑप्शंस ऐसे नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक और कोई ऑप्शन गिवन एन ऑफ दीज या कुछ और ऑप्शन मेंशन्ड है, तो हो सकता है ऐसा कि कार पहले डेस्टिनेशन पहुंच गया और मीटिंग पॉइंट उसके बाद में आता है, यानी कि उससे ज्यादा ट्रैवल करते तब मीटिंग पॉइंट आता, तो कार पहले ही हॉल्ट हो गया, जो आगे निकल रहा था यानी कि स्वरूप लेटर से 9:24 पे उनको मिलना था, बट 9:20 पे ही डेस्टिनेशन पे रीच कर गया, तो क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। ठीक है, इस केस में क्या है, टोटल 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी कि कितना टाइम लगेगा स्वरूप को, स्वरूप की स्पीड है 40 की, टाइम टेकन विल बी 20/40 यानी कि 30 मिनट्स का टाइम लगेगा, तो 9:30 पे ही विल बी रीचिंग द एंड पॉइंट, इजंट इट सो? 9:30 पे नहीं, 9:30 एक सेकंड 9:24 6 मिनट्स तो पहले ही ट्रेवल कर गया था, सो एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे ही मिल रहे हैं क्या ये लोग? हाँ एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे तो मिल रहे हैं, एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे मिल रहे हैं 9:24 पे, दे बोथ आर रीचिंग द पॉइंट बी, so they will be meeting again at point B only. Interesting. Okay, so they are meeting at point B only because total 24 minutes में he will be reaching, Arup will be reaching end point exactly. ठीक है, सो यहाँ पे तो दोनों सेम टाइम पे मिल रहे हैं, जिस टाइम पे कार रुकने वाला है उसी टाइम पे उनका मीटिंग हो रहा है। क्या क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Pradeep could either walk or drive to office. The time taken to walk to the office is 8 times the driving time. So he could either walk or drive to office, but time taken to walk to the office is 8 times the driving time. अब देखो फंडा ये है टाइम स्पीड डिस्टेंस किसी भी क्वेश्चन में, इफ डिस्टेंस इज सेम, इफ डिस्टेंस इज सेम देन टाइम एंड स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी जो टाइम का रेशियो होगा उसका ऑपोजिट रेशियो होगा स्पीड का। तो ड्यूरिंग द वॉकिंग टाइम टेकन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ ड्यूरिंग द ड्राइविंग, तो वॉकिंग और ड्राइविंग का टाइम का रेशियो क्या है 8:1, और क्योंकि डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम होगा ऑफिस से घर के बीच का, सो स्पीड का रेशियो विल बी जस्ट ऑपोजिट 1:8, रेशियो ऑफ स्पीड विल बी 1:8। ठीक है, अब वन डे व्हाट हैपेंड, हिज वाइफ टुक द कार मेकिंग हिम वॉक टू ऑफिस, वाइफ ने कार ले गई, सो अब इसको वॉक करना पड़ रहा है ऑफिस तक के लिए। ठीक है, so let us say this is the home and then this is the office. So he started walking. After 1 kilometer his phone rang and he reached the temple. So after 1 kilometer he reached the temple and his wife called to say that he can now take the car. अब 1 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है और वाइफ ने बोला कि आप कार लेके जा सकते हो। सो अब उसके पास दो चॉइसेस हैं, वन वे इज दैट ही कंटिन्यूज ट्रैवलिंग, ही कंटिन्यूज वॉकिंग एंड रीचेस द ऑफिस। सेकंड वे इज ही कैन कम बैक टू होम, टेक द कार एंड देन ड्राइव बैक टू ऑफिस। दो ऑप्शंस हैं एंड प्रदीप फिगर्ड आउट दैट कंटिन्यू टू वॉक टू द ऑफिस विल टेक एज लॉन्ग एज वॉकिंग बैक होम एंड देन ड्राइविंग टू द ऑफिस, यानी कि टाइम उसको सेम ही लगेगा वेदर ही प्रेफर्स टू वॉक और ही गोज बैक टू होम and then drives back to office. दोनों केसेस में total time will be same only. Question is calculate the distance between the temple and the office. Okay. So what do we know in this question and what we have to find out? We know that the distance between home and the temple, this distance is 1 kilometer. And we need to find out
दिस डिस्टेंस फ्रॉम टेम्पल टू ऑफिस. लास्ट लाइन हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है. लास्ट लाइन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टेम्पल एंड द ऑफिस. होम से ऑफिस के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है टेम्पल से ऑफिस का. तो लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डी. ओके, लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस इज इक्वल टू डी. सो इफ डिस्टेंस इज डी और वो वॉक कर रहा है, लेट अस अज्यूम कि वॉक करने का जो उसका स्पीड है दैट इज 1x और ड्राइव करने का स्पीड है 8x. सो इन द फर्स्ट सिनेरियो इज ही continues walking to the office. That is our first scenario. Second scenario is he goes back to home. तो जाएगा वॉक करते हुए और लौट के आएगा ड्राइव करते हुए. So this is our second scenario. ठीक है. टाइम टेकन इन फर्स्ट सिनेरियो, दिस विल बी डिस्टेंस दैट ही हैज टू ट्रेवल इज डी. तो डी डिवाइडेड बाई स्पीड ड्यूरिंग वॉकिंग विच इज 1x. टाइम टेकन इन सेकंड सिनेरियो, लौट के जाएगा 1 किलोमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ड्यूरिंग दैट टाइम विल बी x, क्योंकि वॉक करके जा रहा है, प्लस अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको, d+1 एंड स्पीड विल बी 8x एंड बोथ टाइम्स आर इक्वल. तो d बाई एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस d+1 अपॉन 8x. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, x तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, सारे डिनोमिनेटर में x तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. सो वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ से वैल्यू हो जाएगा d-1 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू d+1 अपॉन 8x. x से x को कैंसिल कर दो तो 8 इंटू d-1, दिस इज इक्वल टू d+1. So this becomes 8d minus d, 7d, which is equal to 8 plus 1, 9. 7d is equal to 9, तो d becomes equal to 9/7. और क्वेश्चन में हमने d डिस्टेंस ही निकालना है, टेम्पल से ऑफिस तक का डिस्टेंस ही चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू 9/7 किलोमीटर्स एंड दैट विल बी आवर आंसर. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. अगर क्वेश्चन में होम से लेकर ऑफिस का डिस्टेंस पूछता तो फिर ऑप्शन डी आंसर होता, बट इन दिस केस ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन ऑल दीज क्वेश्चंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? प्रॉपर डायग्राम बनाना, चीज़ों को जो कही जा रही है उनको समझना. जेड क्या रही क्वेश्चन में तुम्हें यही करना है, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें अपने आप जो प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छे से मजबूत करना है, बेटर करना है. कि स्टेप बाय स्टेप पहले तुमने प्रॉपर डायग्राम बनाया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो आंसर नहीं कर पाओगे. स्ट्रेट अवे को फॉर्मुला लगना नहीं है. ठीक है. एक बार समझ लिया, समझने के बाद में उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके पार्ट्स में सॉल्व किया और आंसर में पहुंच गए. ओके. सो बस शांति से अपना दिमाग ठंडा रख के हमें हर एक क्वेश्चन को समझना है. अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा तरीका और देखते हैं, एक और तरीका देखते हैं. इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है, ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, बट वो मेथड भी अच्छा है और वो भी तुम्हें चीज़ें समझाएगा. कुछ सिंपल हम वहाँ पे रेशियो के टर्म्स में डील करेंगे चीज़ों को. ओके. डायग्राम को एक बार फिर से बना लेते हैं. दिस इज होम, this is temple and this is office. This distance is 1 kilometer. Okay. So now from home to temple ultimately वो कुछ टाइम उसको लग रहा है, ठीक है, जाने में, और इसके बाद में फिर टेम्पल से ऑफिस जा रहा है. सो लेट अस से कि टेम्पल से ऑफिस जाने में टाइम टेकन बाय हिम बिकॉज ही इज वॉकिंग अल्टीमेटली. एक पहला ऑप्शन क्या है कि वाया वॉकिंग हो जाए ऑफिस तक, तो टाइम टेकन मान लेते हैं 80 लग रहा है उसको. ठीक है, 80 मान लेते हैं. क्यों 80 मान रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन स्टार्ट में कह रहे हैं टाइम टेकन टू वॉक टू द ऑफिस इज 8 टाइम्स द ड्राइविंग टाइम. ठीक है. सो लेट अस से दिस टाइम इज 80. ठीक है, लेट अस से दिस टाइम इज 80. ओके. एंड इफ दिस टाइम इज इक्वल टू 80, इन दैट केस उसको टोटल टाइम लगने वाला है इफ ही इज रिटर्निंग कमिंग बैक टू होम एंड देन गोइंग बैक, तो ये टोटल टाइम कितना होगा? दिस टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 80 ओनली, बिकॉज सेकंड केस में भी सेम ही टाइम लगना है. Isn't it so? बट अब दो पार्ट से ब्रेक करते हैं इस क्वेश्चन को. वन स्ट्रेच इज होम से टेम्पल का स्ट्रेच, सेकंड स्ट्रेच है टेम्पल से लेके ऑफिस का स्ट्रेच. तो इन टेम्पल टू ऑफिस स्ट्रेच डिस्टेंस सेम है, एंड इफ डिस्टेंस इज सेम टाइम टेकन बाय वॉकिंग इज 8 टाइम्स द टाइम टेकन वाइल ड्राइविंग. तो सेकंड केस में तो ड्राइव कर रहा होगा, तो ड्राइव करते हुए सेकंड केस में टाइम कितना लगेगा उसको? t टाइम लगेगा इन ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस, जो कि फर्स्ट केस में लगा 80. क्या क्लियर है? और अगर यहां पे t टाइम लगने वाला है, इस स्ट्रेच पे t टाइम लगने वाला है, टोटल टाइम लग रहा है 80 का, तो रिमेनिंग टाइम मस्ट हैव बीन इन दिस स्ट्रेच 70 का टाइम. Isn't it so? And this stretch he goes from temple to home walking and then comes back driving.
सो अगेन टाइम का रेशियो क्या होगा 70 टाइम में, इस 70 टाइम में भी 1 यूनिट टाइम लगा होगा उसको ड्राइव करने में और 8 यूनिट्स टाइम लगा होगा उसको वॉक करने में। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 8 यूनिट टाइम लगा है उसको वॉक करने में, 1 यूनिट लगा है ड्राइव करने में, 8 + 1 9 यूनिट्स का टाइम टोटल लगा है, एंड दिस 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 70, 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 70। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, एंड इफ 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 70 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 7/90, एंड हेंस 8 यूनिट्स टाइम जो कि वॉक करने में लगा है दैट विल बी 8 × 7/90। क्या ये क्लियर है? अगर ये बात समझ में आया है तो वी नो कि फर्स्ट केस में ही इज ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर डिस्टेंस, so time taken by him in traveling 1 kilometer distance is 8 × 7/90, time taken by him in traveling 1 kilometer distance is 8 × 7/90। let us say this point is ht, ठीक है, ht मान लेते हैं डिस्टेंस, तो ht डिस्टेंस में टाइम लग रहा है उसको 8 × 7/90, और to फ्रॉम टेम्पल टू ऑफिस टाइम लग रहा है 80 का, वॉक करते हुए, दोनों केसेस में वॉक कर रहा है, तो टाइम को कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है, दोनों केसेस में वॉक कर रहा है, तो टाइम हमारा आ गया 8 × 7/90 और 80, रेशियो क्या आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ गया हमारा 7/9:1, यानी 7:9 का रेशियो आ गया, रेशियो इज 7:9, और ये रेशियो किसका है, टाइम का रेशियो। Isn't it so? क्या क्लियर है? ये रेशियो हमारा है टाइम का रेशियो, ठीक है, और अगर टाइम का रेशियो आ गया 7:9 तो यही सेम डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है उसके दोनों केसेस में, तो डिस्टेंस का भी रेशियो ही सेम होगा, डिस्टेंस विल ऑल्सो भी 7:9, एंड वी नो कि 7 यूनिट्स डिस्टेंस तो हमें पता है, यानी कि डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू 1 किलोमीटर है, 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज 1 यूनिट वैल्यू 1/7, तो दिस विल बी 9 × 1/7 किलोमीटर। आई नो यू विल से कि टाइम टेकन इन दिस क्वेश्चन इस अप्रोच से ज़्यादा लगा, बट अगर ये अप्रोच समझ में आ रहा है तो चीज़ें तुम्हें बेटर समझ में आ रही है, बेटर समझ में आ रही है इन कंपैरिजन टू इक्वेशन, तो एक बार इस मेथड को भी समझने की कोशिश करना। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, पहले हमने क्या सोचा कि टाइम टेकन बाई हिम इन वॉकिंग फ्रॉम टेम्पल टू ऑफिस दैट इज 80, और वही सेम टाइम लगेगा इफ ही इज रिटर्निंग बैक टू होम एंड देन ड्राइविंग बैक टू ऑफिस, ठीक है, तो दोनों केसेस में टाइम तो सेम ही होगा। इफ 8t इज टाइम टेकन बाई हिम इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस to, देन इन ड्राइविंग द डिस्टेंस to टाइम टेकन विल बी 8t/8 विच इज इक्वल टू t, तो t टाइम लग गया, रिमेनिंग 70 टाइम विल बी टेकन फ्रॉम टेम्पल टू होम टू टेम्पल, वॉकिंग फ्रॉम टेम्पल टू होम एंड ड्राइविंग फ्रॉम होम टू टेम्पल, ठीक है, सो दैट टोटल टाइम इज 70 टाइम है टोटल, और हमको ये पता है आउट ऑफ दिस 70 टाइम वहां पे भी रेशियो 8:1 का होगा, 8 यूनिट्स टाइम विल बी टेकन इन वॉकिंग द सेम डिस्टेंस एंड 1 यूनिट टाइम विल बी टेकन इन ड्राइविंग द सेम डिस्टेंस, तो 8 + 1 9 यूनिट्स का वैल्यू आ गया हमारा 70, 1 यूनिट विल बी 7/90, अकॉर्डिंगली वॉकिंग का टोटल टाइम मिल गया हमको 8 × 7/90, so 8 × 7/90 इज डिस्टेंस इज टाइम इन ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ht, और 8t इज टाइम इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस to, रेशियो निकाल दिया 7:9 आ गया, टाइम का रेशियो 7:9 है, डिस्टेंस का भी रेशियो सेम होगा, बिकॉज स्पीड तो बिकॉज डिस्टेंस सॉरी टाइम का रेशियो आ गया 7:9, और दोनों ही केसेस में स्पीड तो सेम है बिकॉज वॉक कर रहा है वो, तो अगर स्पीड सेम है तो जो टाइम का रेशियो वही सेम डिस्टेंस का रेशियो होगा बिकॉज स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी आ जाएगा 7:9, 7 की वैल्यू है 1 किलोमीटर, 9 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 1/7 किलोमीटर। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question, study the figure below and answer the question. Now there is a triangle and that has some paths A, B, B, C, A, C, C, D, B, D. 4 persons walk from point A to point D following different routes. The one following A, B, C, D takes 70 minutes. So if someone is following path A, B, C, D, he is taking 70 minutes. A, B, C, D path क्या हो जाएगा? From A to B, then from B to C, then from C to D. So he is taking total 70 minutes. ठीक है? A, B, C, D, time taken is 70 minutes. Another person takes 45 minutes following A, B, D. So from A to B and then from B to D. So A, B, D, time taken is 45 minutes. Third person takes 30 minutes following route A, C, D. So A, C, D route time taken is 30 minutes. And last person takes 65 minutes following route A, C, B, D. So from A to C, then from C to B,
and then from B to D. A, C, B, D, this time taken is 65 minutes. These are the 4 scenarios. And question is asking if all were to walk at the same speed, अगर speed same है तो time taken to travel same distance will be same only. How long will it take to go from point B to point C? Time taken in going from point B to point C. In this stretch कितना time लगा होगा? That is the question. Okay. ठीक है. सो या तो एक तरीका ये है कि हम वैल्यूज वेरिएबल्स अज्यूम कर लें कि ए बी में टाइम लग रहा है, लेट अस से ए, बी सी में टाइम लग रहा है बी, बी डी में टाइम लग रहा है सी, ए सी में टाइम लग रहा है डी और सी डी में टाइम लग रहा है ई. एक अप्रोच तो ये है. ठीक है, अभी क्वेश्चन बना लें. ए बी बी सी सी डी यानी कि ए प्लस बी प्लस ई दैट इज इक्वल 70. ए बी डी में टाइम 45 यानी कि ए प्लस सी इज 45. ACD time is 30. So ACD is D plus E. D plus E, this is equal to 30. And ACBD time is 65. ACBD, so D plus B plus C. This is 65. These are 4 equations. अब इनको सॉल्व करके हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? BC की, यानी कि B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ वी एड दीज 2 इक्वेशंस A प्लस सी एंड D प्लस ई, सो क्या वैल्यू मिल जाएगा हमें यहां से? A प्लस सी प्लस D प्लस ई, दिस इज इक्वल टू 75. एंड इफ यू एड दीज 2 इक्वेशंस तो यहां से वैल्यू मिलेगा A प्लस सी प्लस D प्लस ई प्लस 2B. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके मिलेगा A प्लस सी प्लस D प्लस ई, दिस इज E प्लस 2B, दिस इज इक्वल टू 135. ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट दीज 2 इक्वेशंस, लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2B विल बी इक्वल टू 60. सो B इक्वल टू 30 आ जाएगा, यानी टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस BC विल बी इक्वल टू 30 मिनट्स. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. बिकॉज स्पीड सेम है, स्पीड डिफरेंट होता तो प्रॉब्लम हो जाती, तब नहीं सॉल्व कर पाते, या तब फिर इक्वेशन बनाने में और थोड़ा सा कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन होता तो शायद सॉल्व कर लेते. बट यहाँ पे तो ऐसे सॉल्व होगा. क्या क्लियर है? ठीक है. और अगर बिना इक्वेशन बनाए भी सोच रहे होते तो हम ऐसे सोच रहे होते कि अगर ABCD पे ऑब्जर्व करो, ABCD स्ट्रेच और ACBD स्ट्रेच में, तो ABCD स्ट्रेच में वी आर कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम A टू B. ठीक है, कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम A टू B. एक सेकेंड. ठीक है, फ्रॉम A टू B डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और फिर आ रहे हैं फ्रॉम B टू C एंड देन जा रहे हैं फ्रॉम C टू D इन ABCD. और ACBD में क्या हो रहा है? वी आर गोइंग फ्रॉम A टू C देन C टू B एंड देन B टू D. सो डिस्टेंस BC इज ट्रेवल्ड ट्वाइस अगर हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो. वाइल इन कंपैरिजन ABD और ACD में वी आर ट्रेवलिंग, ABD में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम AB then BD और ACD में this distance is being traveled, isn't it so? क्लियर है? ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया. ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. सो इफेक्टिवली हमारा BC डिस्टेंस 2 बार ट्रैवल हो रहा है. फर्स्ट केस में जब हम दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं और टोटल टाइम आ रहा है हमारा 135. सेकंड में वही डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, टाइम आ रहा है 75, सब्ट्रैक्ट कर दोगे और 2B विल बी इक्वल टू 60. वही सेम जो इक्वेशन बनाई किया, बिना इक्वेशन बनाए भी अगर तुम डायग्राम को समझ जाते हो, सॉल्व कर लोगे, टाइम इतना ही लगना है, एक्जैक्टली सेम ही लगना है, तो कोई फर्क नहीं है दोनों केसेस में. इक्वेशन बना लो, फटाफट से मौज करो. ठीक है, बट ये तरीका भी समझ में आना चाहिए. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज देवानंद's house is 50 km west of Pradeep's house. On Sunday morning at 10 a.m. they leave their respective houses. Under which of the following scenarios the minimum distance between the two houses will be 40 kilometers? Minimum distance would be 40 kilometers. In initial scenario क्या है? देवानंद का हाउस is 50 km west of Pradeep's house. So north, south, east, west. And so if this is house of Pradeep, this will be house of Devanand on the western side of Pradeep's house and the distance between them is 50 kilometers. There are 3 scenarios given और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? Under which of the following scenarios the minimum distance between the two houses would be 40 kilometers. Minimum distance should be 40 kilometers. Okay. Initial distance क्या है? 50. तो अगर डिस्टेंस कम हो रहा होगा तब तो मिनिमम 40 हो पाएगा, यानी कि एक टाइम तक डिस्टेंस कम होगा और फिर बढ़ता रहेगा. मिनिमम शुड बी 40.
ठीक है, ये सिनारियो होना चाहिए। क्या बात समझ पा रहे हो कि बेसिकली द डिस्टेंस विल बी रिड्यूसिंग फॉर एट फर्स्ट 50 से रिड्यूस होकर 40 पहुंचेगा और 50 फिर 40 से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तभी मिनिमम 40 होगा। अगर लगातार रिड्यूस होता रहेगा तो 0 हो जाएगा मिनिमम। सो मिनिमम 40 नहीं होगा उस केस में। मिनिमम 40 सिर्फ तब होगा व्हेन डिस्टेंस विल इनिशियली बी रिड्यूसिंग, initially be decreasing till 40 kilometers, then 40 will be minimum distance between them, and then distance will again start increasing. That should be the case. If that is not the case, if distance is consistently increasing, minimum will not be 40, it will be 0. ठीक है, और फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, और या फिर ऐसा होगा कि डिस्टेंस माइट स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, तो पहले हम सिनेरियो नंबर 2 और 3 को देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट सिनेरियो 1 को देखेंगे। पहले 2 और 3 को देख लेते हैं। ठीक है, so scenario number 2 is saying Devanand walks south at a constant speed of 3 km per hour and Pradeep walks east at a constant speed of 4 km per hour. Initial distance between them is 50 in both cases. Initial distance is 50. Devanand is walking south. So he is going south at a speed of 3 km per hour and Pradeep is walking east at a constant speed of 4 km per hour. ठीक है, तो देवानंद इज वॉकिंग साउथ, प्रदीप इज गोइंग ईस्ट। लेट अस से टी टाइम के बाद में डिस्टेंस ट्रेवल बाई देवानंद कितना होगा? दैट डिस्टेंस विल बी 3t। 3t विल बी डिस्टेंस ट्रेवल बाई देवानंद आफ्टर टी टाइम। ओके, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई प्रदीप बिकॉज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दैट विल बी 40। सो एट दिस पॉइंट प्रदीप विल बी देयर, एट दिस पॉइंट देवानंद विल बी देयर। डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी this one, isn't it so? ये डिस्टेंस आ जाएगा एंड फॉर श्योर इफ दिस डिस्टेंस ऑलरेडी दिस डिस्टेंस वाज 50, तो ये डिस्टेंस हमारा 50 से बढ़ा ही जाएगा। दिस विल एनीवे बी ग्रेटर देन 50। सो एज द टी प्रोग्रेसेस, एज द टाइम प्रोग्रेसेस, डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इंक्रीजिंग। डिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ता रहेगा, तो कभी 40 तो नहीं पहुंच सकता, 50 से ज्यादा ही होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 50 फॉर श्योर। क्या क्लियर है? डिस्टेंस विल कंसिस्टेंटली बी इंक्रीजिंग ओनली, कम तो होगा ही नहीं। तो सेकंड सिनेरियो तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर पॉसिबल नहीं है ऑप्शन बी भी आंसर पॉसिबल नहीं है। ओके, थर्ड सिनेरियो। इन थर्ड सिनेरियो देवानंद वॉक्स वेस्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 एंड प्रदीप वॉक्स ईस्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3। सो देवानंद इज वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट एंड प्रदीप इज वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी भाग रहे हैं और दूर की तरफ भी भाग रहे हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस लगातार इंक्रीज करेगा, यहां पे भी डिस्टेंस इंक्रीज ही होना है, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यहां भी थर्ड केस में भी सिनेरियो में नॉट पॉसिबल, डिस्टेंस विल नॉट बी, मिनिमम डिस्टेंस विल नॉट बी 40। ठीक है, बिकॉज 50 है इनिशियल डिस्टेंस, वही मिनिमम है, उसका डिस्टेंस इंक्रीज ही करना है। तो सेकंड एंड थर्ड आर आउट। सो ओनली ऑप्शंस पॉसिबल आर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर ई। इधर सिनेरियो 1 में हमें हमारा केस सेटिस्फाई करेगा या फिर ऑप्शन नंबर ई होगा आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, और सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट करना वाज वेरी इजी। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर फर्स्ट की। Scenario number 1 is saying Devanand walks east at a constant speed of 3 km per hour. Initial कहानी है Devanand, Pradeep, distance is 50 and Devanand is walking east at a constant speed of 3 km per hour. So this is direction east, speed is 3 km per hour and Pradeep is walking south at a constant speed of 4 km per hour. Okay, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? लेट अस से टी टाइम के बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर टी टाइम देवानंद इज एट दिस पॉइंट एंड प्रदीप इज एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? दैट विल बी, मिनिमम डिस्टेंस विल बी दिस ओनली। ठीक है, एंड इफ आफ्टर टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देवानंद, दिस विल बी 3t, बिकॉज स्पीड तो 3 की है, दिस डिस्टेंस विल बी 3t। So if this is 3t, so remaining distance, and this distance will be 50 minus 3t. Isn't it so? ठीक है, ये distance होगा 50 minus 3t. Similarly, distance traveled by Pradeep will be 4t. और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा वैल्यू? लेट अस से इफ दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू d. So by Pythagoras theorem, d square will be equal to 50 minus 3t whole squared plus 4t whole squared. So ये वैल्यू आ जाएगा 2500 minus 300t plus 9t square plus 16t square. Okay,
सो दिस इज इक्वल टू 2500 माइनस 300t प्लस 25t स्क्वायर. 25 को कॉमन ले लो तो इनसाइड ब्रैकेट वैल्यू विल बी 100 माइनस 12t प्लस टी स्क्वायर. अब 25 तो कांस्टेंट है तो हमारा फोकस होना चाहिए इस एक्सप्रेशन पे 100 माइनस 12t प्लस टी स्क्वायर कि इसका वैल्यू मिनिमम कब आएगा. जब मिनिमम वैल्यू होगा तभी डिस्टेंस हमारी मिनिमम होगी. 100 माइनस 12t प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू जब मिनिमम होगा वही डिस्टेंस हमारी मिनिमम होगी. इज दैट इट सो? क्लियर है? ठीक है. अब देखो 100 माइनस 12t प्लस टी स्क्वायर, यहां पे टी स्क्वायर बेसिकली हैज अ पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट. पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस. अपवर्ड्स पैराबोला होगा. इज दैट सो? अपवर्ड्स पैराबोला होगा यानी कि यहां पे एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा एंड दैट मिनिमम वैल्यू विल बी एट, अगर ये क्वेश्चन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो मिनिमम वैल्यू कब होता है? x इज इक्वल माइनस b बाई 2a पे. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कब होगा? इफ वी हैव इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, एंड a इज ग्रेटर देन 0, लीडिंग कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा ऐसा अपवर्ड्स पैराबोला. देयर विल मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू विल बी एट x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a. ठीक है, x इक्वल माइनस b बाई 2a पे मिनिमम वैल्यू होगा. क्लियर है? तो सेम स्टोरी यहाँ पे है. इस केस में मिनिमम वैल्यू कब होगा हमारा? t इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस और माइनस 12 विच इज इक्वल टू 12 बाई 2 यानी कि t इज इक्वल टू 6 पे वी विल बी हैविंग मिनिमम वैल्यू. पुट कर दो t इज इक्वल टू 6 तो क्या वैल्यू आएगा हमारा? एट t इज इक्वल टू 6 वैल्यू विल बी d स्क्वायर का वैल्यू विल बी 25 इंटू 100 माइनस 72 प्लस 36. ठीक है, सो 100 माइनस 36 64, 25 इंटू 64 दिस इज d स्क्वायर. तो d की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स. सो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू. तो यस, फर्स्ट scenario is satisfying the condition, so option A will be the answer, scenario 1 only. Is that clear? ठीक है, scenario 1 only will be the case. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. City Bus Corporation runs 2 buses from terminus A to terminus B, each bus making 5 round trips in a day. 2 buses are there from terminus A to terminus B, and each bus makes 5 round trips per day. There are no stops in between. These buses ply back and forth on the same route at different but uniform speeds. So their speeds are different but uniform. Each morning, the buses start at 7 a.m. from the respective terminuses. 7 a.m. from the respective terminuses. They meet for the first time at a distance of 7 km from terminus A. First meeting is at a distance of 7 km from terminus A. Their next meeting is at a distance of 4 km from terminus B while traveling in opposite directions. First meeting हो रहा है at a distance of 7 km from terminus A. Second meeting हो रहा है at a distance of 4 km from terminus B while these are traveling in opposite directions. Assuming that the time taken by the buses at the terminuses is negligibly small and the cost of running a bus is rupees 20 per kilometer, तो daily cost क्या होगा? अब डेली कॉस्ट पता लगाएंगे. वी नीड टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस और उसी के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है मीटिंग पॉइंट्स का. ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारा कितना होगा? अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टर्मिनस ए एंड बी, लेट अस से डिस्टेंस इज डी. तो अगर डिस्टेंस हमारा डी हुआ तो फॉर वन बस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? राउंड ट्रिप में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? डी एक साइड में ट्रैवल होगा तो डी इंटू 2. ठीक है, वन ट्रिप का डिस्टेंस एंड वन बस मेक्स टोटल 5 ट्रिप्स तो इंटू 5 कर दोगे तो डिस्टेंस ट्रैवल बाई वन बस पर डे, डिस्टेंस बाई वन बस पर डे, मल्टीप्लाई दिस बाय 2 तो डिस्टेंस ट्रैवल बाई 2 बसेस पर डे एंड सिंस 20 रुपीज पर किलोमीटर है तो मल्टीप्लाई बाई 20 एज वेल. ठीक है, क्लियर है? सो बस इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे क्या बच गया? डी की वैल्यू डालते ही आंसर आ जाएगा हमारा. Okay. So first information is that they meet for the first time at a distance of 7 km from terminus A. One bus is starting from terminus A, other is starting from terminus B. And the first meeting happens at 7 km distance. ठीक है?
सो ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग एक बस आ रही है ए से, एक बस आ रही है बी से, दोनों बसेस ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? टोटल डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितना डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विल बी डी ओनली इन द फर्स्ट केस ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग, मीटिंग नंबर 1 पे डिस्टेंस ट्रेवल विल बी, टोटल डिस्टेंस विल बी डी। ओके, अब क्या होगा? अब दोनों बसें अपने अपने रास्ते पे वापस चली जाएंगी, यानी कि जो जिस रास्ते पे जा रही थी वहां जाती रहेगी। तो फर्स्ट बस विल गो ऑन, रीच बी एंड कम बैक, एंड सेकेंड बस विल गो ऑन, रीच ए एंड कम बैक, and then they will meet for the second time, and second meeting happens at a distance of 4 km from terminus B. This is meeting number 2 and this distance is 4 km. ठीक है, this was 7, this distance is 4. अब फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे टोटल ट्रैवल डिस्टेंस कितना है? D है, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस वाज D। सेकंड मीटिंग के टाइम पे टोटल ट्रैवल डिस्टेंस कितना है? फर्स्ट मीटिंग को छोड़ दो, फर्स्ट मीटिंग के बाद में कितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस? दोनों बसेस ने मिलकर 2D डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डबल दैट ऑफ फर्स्ट टाइम। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सेकंड मीटिंग के टाइम पे दो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोथ द बसेस आफ्टर फर्स्ट मीटिंग इज 2D, डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अगर डिस्टेंस डबल ट्रैवल किया है, स्पीड दोनों बसेस का अपना अपना कांस्टेंट है, सो डिस्टेंस ट्रैवल पर्टिकुलरली बाय ईच बस विल आल्सो बी डबल। Isn't it so? Because the first meeting when that happened, distance traveled by the first bus that started from A was 7 kilometers. Distance traveled by the first bus that started from A, this distance was 7 kilometers. So if this bus has traveled double the distance, तो अब इसने distance travel किया है कितना? 7 into 2, 14 kilometers. So this distance will be 14. Is that clear? And if this distance is 14 and this distance is 4, यानी कि this is 4, so this must be 10. So this must be 10. And if this is 10, this was 7, this is 10, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 7 + 10 17, डी इज इक्वल टू आ गया हमारा इक्वल टू 7 + 10 17 किलोमीटर्स। एंड इफ दिस इज 17 किलोमीटर तो आंसर हमारा आ जाएगा 17 × 2 × 5 × 2 × 20। 17 किलोमीटर × 2, 1 राउंड ट्रिप इज 34 किलोमीटर, 5 राउंड ट्रिप्स 34 × 5 170 किलोमीटर्स। सो 170 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 बसेस 340 किलोमीटर्स, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज पर किलोमीटर, तो टोटल आ जाएगा 170 × 40 6800 रुपीज पर डे। दिस विल बी द पर डे कॉस्ट। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे कि फर्स्ट बस इज ट्रैवलिंग 7 किलोमीटर डिस्टेंस, सेकंड बस इज ट्रैवलिंग लेटेस्ट से टोटल डिस्टेंस अगर डी है, सेकंड बस विल बी ट्रैवलिंग डी -7 डिस्टेंस। ओके, ठीक है, और क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था तो डी डिस्टेंस ट्रैवल किया था टोटल, सेकंड टाइम मीटिंग के टाइम पे डिस्टेंस ट्रैवल हुई डबल बाय बोथ द बसेस। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फर्स्ट बस was 7 kilometers, now the distance traveled by the first bus will be 14। ठीक है, and this distance is d -7, तो d -7 plus 4 is equal to 14 and hence d -3 is equal to 14, तो d is equal to 17 आ जाएगा। अगर ऐसे समझने में दिक्कत आ रहा तो बस एक अननोन d तो माना ही हुआ हमने, उसके साथ सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन में जो रह गया। देखो क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ था जिस पर शायद तुमने उतना ध्यान नहीं दिया, बट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इन्फॉर्मेशन वाज दैट कहाँ गया? हाँ, देयर नेक्स्ट मीटिंग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम टर्मिनस बी व्हाइल ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, एंड दिस वाज मेंशन्ड फॉर अ रीजन। देखो, इन एनी केस व्हेन द फर्स्ट मीटिंग हैपेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग में तो ठीक है डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमने कह दिया कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डी अगर डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स बोथ आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल ऑलवेज बी डी। ठीक है, फॉर श्योर, स्पीड कुछ भी हो उनकी फर्क नहीं पड़ता। बट सेकंड मीटिंग के लिए दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, दो केसेस बनेंगे सेकंड मीटिंग के लिए। मीटिंग 1 में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 16 किलोमीटर इज डिस्टेंस। ओके, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, स्पीड ऑफ फर्स्ट इज 5 मान लेते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर,
एंड स्पीड ऑफ सेकंड इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आफ्टर 2 आवर क्या होगा, फर्स्ट विल बी ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स and second will be traveling 6 kilometers total, so they will be meeting after traveling 16 kilometer distance together। क्लियर है? अब सेकंड टाइम मीटिंग कब होगा, 2 आवर्स के बाद में फर्स्ट मीटिंग हुआ, सेकंड मीटिंग हुआ आफ्टर 4 more hours, 2 + 4 hours। फर्स्ट हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर्स, then it will travel 20 kilometers more, 6 kilometers this distance and then 14 more। ठीक है, 14 more, so 6 kilometers here, 8 here, total 14 distance। एक सेकंड 14 मोर, तो 14 तो और आगे जाएगा, 6 and 14। ठीक है, सो समवेयर हियर टोटल 20 ट्रैवल करेगा, और सेकंड वाली बस भी 20 कितना ट्रैवल करेगी, डबल अपना, पहले 6 ट्रैवल किया था तो अब 12 करेगी, 10 तो ये कर ही लेगी, और उसके बाद 2 और ट्रैवल करके इनका मीटिंग होगा। तो 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दे विल बी मीटिंग फॉर द सेकंड टाइम। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे ध्यान देना, रेशियो ऑफ स्पीड इज 5:3। ठीक है, विच इज लेस देन 2। ठीक है, स्पीड ऑफ द फास्टर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ स्लोअर ऑब्जेक्ट, दैट इफ एज लॉन्ग एज दैट इज लेस देन 2। ठीक है, स्पीड ऑफ द फास्टर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द स्लोअर ऑब्जेक्ट एज लॉन्ग एज दैट इज लेस देन 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ दैट इज इक्वल टू 2 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ये रेशियो हमारा 2 से बड़ा हो जाएगा तब मीटिंग के टाइम पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, सेकंड मीटिंग के टाइम पे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब एक और सिनेरियो लेते हैं, 16 किलोमीटर डिस्टेंस रखते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा, अगेन आफ्टर 2 आवर्स दे विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट मीटिंग में तो दिक्कत नहीं है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी ट्रैवलिंग 12 किलोमीटर डिस्टेंस और दूसरा ट्रैवल करेगा 4 किलोमीटर, 2 आवर्स के बाद मीटिंग हो जाएगा। बट अब सेकंड मीटिंग के लिए क्या होगा, देखो अब ये तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, 2 आवर्स में चला है 4 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, 2 आवर्स में चला है 4 किलोमीटर, अब ये आगे चलना शुरू करेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बट ये जो 12 किलोमीटर चल गया 2 आवर्स में, इसको 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 आवर में ट्रैवल करेगा 6। ठीक है, 4 तो ये वाली डिस्टेंस है, सो 1 आवर में ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 आवर्स में ट्रैवल डिस्टेंस विल बी 12, तो 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा ये एडिशन। ठीक है, 4 तो ये चला गया और 8 और आ गया वापस, 8 और आ गया वापस, क्योंकि टोटल ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और उसी सेम टाइम में 2 आवर्स में फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा 4 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट विल ऑल्सो बी एट दिस पॉइंट। सो बोथ विल बी मीटिंग फॉर द सेकंड टाइम व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड नॉट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो इफ द स्पीड का रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 2, तब तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट सेकंड मीटिंग होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमारा 2D होगा, बट इस केस में 2D नहीं होगा, because they both are meeting when traveling in the same direction. That is why question was saying that they met at a distance of 4 km from terminus B while traveling in opposite direction. That is a very important information, because अगर वो opposite directions में travel कर रहे हैं तभी हमारा distance total 2D होने वाला है second meeting में, otherwise नहीं होने वाला है। क्या appreciate कर पा रहे हो? ठीक है, so that was an important point that needed to be discussed. Next question करते हैं, अमरेंद्र बाहुबली and धर्मेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र and धर्मेंद्र are brothers. One day, they start at the same time from their home for Tata Nagar railway station in their respective cars. Amarendra took 25 minutes to reach the station. After reaching the station, Amarendra found that Dharmendra is 2500 meters away from the station. The distance of Tata Nagar railway station from their home is 15 kilometers. Next day, Dharmendra decided to start 7 minutes early. If they drive at the same speed as the previous day, then Amarendra will reach the station after what time? या फिर क्या हमारा ऑप्शन आंसर होगा इसका? ठीक है, सो क्या इंफॉर्मेशन की मैंने, बोथ आर ब्रदर्स, यानी कि उनका घर तो सेम है। ओके, वन डे दे स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम देयर हाउसेज फ्रॉम देयर होम फॉर टाटा नगर रेलवे स्टेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कार्स. अमरेंद्र टुक 25 मिनट्स टू रीच द स्टेशन. टाइम टेकन बाय अमरेंद्र टू ट्रैवल द डिस्टेंस 15 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम टू रेलवे स्टेशन. अमरेंद्र इज टेकिंग 25 मिनट्स का टाइम. Okay, and after reaching the station, Amarendra found that Dharmendra is 2500 meters away from the station. दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया, बट डिस्टेंस ट्रेवल बाय धर्मेंद्र इज 2.5 किलोमीटर लेस, यानी कि 12.5 किलोमीटर ओनली. ओके, सो फॉर अमरेंद्र एंड धर्मेंद्र डिस्टेंस का रेशियो क्या है?
डिस्टेंस अमरेंद्र इज 15 किलोमीटर्स इन द सेम टाइम एंड धर्मेंद्र इज ट्रेवलिंग ओनली 12.5 किलोमीटर। रेशियो क्या होगा? रेशियो हो जाएगा 6:5। सो सिंस टाइम इज सेम तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही सेम स्पीड का भी रेशियो होगा 25 मिनट्स में। इज दैट सो? 25 मिनट्स में दोनों का स्पीड का भी रेशियो सेम होगा, बट क्वेश्चन में स्पीड नहीं पूछा है, क्वेश्चन हमें टाइम के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो 25 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल बाई धर्मेंद्र इज 12.5 किलोमीटर्स। तो धर्मेंद्र को पूरा डिस्टेंस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट से ट्रैवल कर रहा है 12.5 किलोमीटर्स, यानी कि 1 मिनट में ही इज ट्रैवलिंग हाफ किलोमीटर। सो बचा हुआ 2.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगने वाला है उसको? 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स का। तो टोटल टाइम टेकन बाय धर्मेंद्र 25 + 5 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। इज दैट सो? क्लियर है? नेक्स्ट डे धर्मेंद्र स्टार्ट करेगा 7 मिनट्स अर्ली। धर्मेंद्र स्टार्टेड 7 मिनट्स अर्ली, ठीक है। सो लेट अस से अमरेंद्र स्टार्ट्स एट 9 AM। नेक्स्ट डे अमरेंद्र स्टार्ट करता है 9 AM पे, धर्मेंद्र स्टार्टेड 7 मिनट्स अर्ली, तो धर्मेंद्र स्टार्ट करेगा एट 8:53 AM एंड टाइम टेकन बाय धर्मेंद्र इज 30 मिनट्स। सो 8:53 + 30 ही विल बी रीचिंग स्टेशन एट 9:23 AM एंड अमरेंद्र को लगने वाले 25 मिनट्स। तो टाइम टेकन बाय अमरेंद्र इज 25 मिनट्स। 9 + 25 9:25 AM पे अमरेंद्र विल बी रीचिंग द स्टेशन। So question is Amarendra will reach the station. So Dharmendra already 2 minutes पहले ही पहुंच गया है. So Amarendra is reaching the station 2 minutes later than Dharmendra. So 120 seconds after Dharmendra. Option B will be the answer. Isn't it so? Clear? तो 5 minutes का ही लीड था अमरेंद्र के पास में. अमरेंद्र was 5 minutes fast. बट सेकेंड केस में धर्मेंद्र 7 मिनट्स अर्ली निकल रहा है, यानी कि 2 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा है वो लीड से ज़्यादा. सो 2 मिनट्स पहले पहुंच जाएगा. दैट इज वाई धर्मेंद्र विल बी रीचिंग 2 मिनट्स अर्लियर एंड अमरेंद्र विल बी 2 मिनट्स आफ्टर रीचिंग 2 मिनट्स आफ्टर धर्मेंद्र. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर इन दिस केस. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस रह गए थे हमारे फर्स्ट सेशन में उनको कवर अप कर लिया हमने. एंड आई बिलीव जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. Give your comments in the feedback. Session कैसा लगा, तुम्हें पसंद आया हो? If you like the session, then make sure you hit the like button as well. And if you have not already subscribed to the channel, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join me on Telegram at Methodological and can message me on Telegram at ADITYKT. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep running.